Hello everyone, my name is Akshaya Prabhu and I'm your faculty for the subject Object Oriented Programming using C++. In the last semester, you have already learned the subject that is C programming, and in this semester, you're gonna learn this language that is C++. So for this subject, we would need the software that is Turbo C++, or else you can also use the software Visual Studio Code. If you don't have PC laptop at home, you can also use your mobile phone and install some software so that you can execute the C++ program. Okay, so next we'll see marking system for this subject. So you have total 70 marks of the theory paper, 30 marks for the unit test and micro project, 25 marks for the internal practical exam, and 25 marks for the term work. So total you have 150 marks for this subject. Um, Now we'll see some basic concepts of OOPS. Okay. Mm, First thing is that OOP is not a language. Language मतलब क्या होता है? Like C++ is a language, C is a language, Python is a language, Java is a language, but OOP is not a language. Also, it is not a technology. So you must be wondering, if it is not a language, not a technology, then what it is? इट्स एन अप्रोच टू डू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अप्रोच मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर, by using that structure you can do software programming, or else you can say it is a software programming paradigm. ठीक है. Some of the approaches are machine language programming, assembly language programming, uh, procedure oriented programming, and object oriented programming. Uh, so, um, there are also another approaches like functional programming approach, logical programming approach. But in this lecture, we'll see only these four approaches, that is machine language programming, assembly language programming, POP, and OP. Okay. So first of all, we'll see what is machine language programming. So what is programming? Okay, so programming is nothing but giving instructions to the computer, and without the instructions, no computer will work. Okay, so there was programming always. Um, During the early stages of computer development, they have used this machine language programming approach. In this approach, instructions is in form of a set of bits. Bits मतलब क्या होता है? In the form of 1001. Okay, so this is a instruction. Okay, and um, these instructions, this instruction is aimed at particular machine. That's why they have called it as machine language programming. The problem with the machine language programming is that, as I don't know the meaning of this instruction, also you don't know the meaning of this instruction. So if I tell you to develop certain programs using machine language programming, it would be difficult. Next approach is assembly language programming. It has instructions like add a comma b, move a comma b, jump 6000. Meaning of this is that add a comma b is you have to perform addition of a and b. Move a comma b is you have to move the content of b to the a. Jump 6000 is you have to jump to the memory location 6000. Instructions are in the form of lot like English language, but still it would be difficult for you to develop a program by using this assembly language programming, or develop a software using this approach. Next approach is procedure oriented program, that is POP. uh, in this you have also used the C language, um,
ALGOL, BASICS, etc. These languages comes under the POP approach. Okay, so idea behind the C language is that uh, they divide the large program into a functions. मतलब क्या कहते हैं, अगर लार्ज प्रोग्राम है तो उसको किस में डिवाइड करता है, फंक्शन में. एंड इट हैज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर्स लाइक if else, while, for, switch functions. So it is also called as structured programming language. You have to follow some flow chart, like you have to draw some flow chart before writing the exam, and according to the flow you have to write the programs. That's why it is called as procedure oriented programming. So these programs are perfectly readable, simple. Then what is the problem with the C language, or what is the problem with the POP? So first problem is that when your program goes beyond certain limits, and even if you break down into functions, then also these functions are unmanageable. What it mean is, अगर तुम लोग का प्रोग्राम बहुत बड़ा हो रहा है, सर्टन लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो वो क्या होता है, अनमैनेजेबल होता है. मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अगर तुम लोग उसको डिवाइड करोगे फंक्शंस में भी, तो भी वो क्या हो जाएगा, अनमैनेजेबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज़ माई प्रोग्राम एंड इट हैज़ ओनली वन फंक्शन दैट इज़ मेन, एंड इट हैज़ 25,000 लाइन्स ऑफ कोड. ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और एरर आता है, तो देन व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू स्कैन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. ठीक है, टॉप टू बॉटम मुझे स्कैन करना पड़ेगा कि किधर एरर आ रहा है. Another way is you can also divide the programs into functions. Suppose मैंने function में divide किया, like this is your function 1, this is your function 2, and this is your function 3. Again हर एक function को like 8,000 lines का कोड आएगा. Then also अगर error आ रहा है, I have to scan entire functions कि किधर एरर आ रहा है. वाई? बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल ना कि फंक्शन 1 में एक डेटा यूज़ हो रहा है, वही डेटा फंक्शन 2 में यूज़ हो रहा है, वही डेटा फंक्शन 3 में यूज़ हो रहा है, और फंक्शन 1 उसका वैल्यू मैनिपुलेट कर रहा है, वो मैनिपुलेटेड वैल्यू ये भी मैनिपुलेट कर रहा है, ये भी मैनिपुलेट कर रहा है. तो किधर कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, वो उसका वैल्यू कौन ले रहा है, ये सब देखने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे फंक्शन स्कैन करने पड़ेंगे. एंड it will make it unmanageable. ठीक है, this is the first difficulty और disadvantage of POP approach. ठीक है, अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो you can't solve by using the POP approach. You have to use the another approaches like OOP. ठीक है, second disadvantage of POP is that, and most important disadvantage of POP is that security. Data in the POP approach is public. ठीक है, data is not private. ठीक है. Now what is data? What do you mean by data? तुम लोग ने मेल यूज़ किया होगा, तो पासवर्ड ऑफ द मेल इज़ डेटा. ठीक है, योर फ़ोन नंबर इज़ डेटा, योर डेट ऑफ बर्थ इज़ डेटा. अगेन तुम लोग ने बैंक अकाउंट यूज़ किया होगा, तो तुम लोग की ATM का पिन क्या होता है, वो डेटा होता है. क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा, क्रेडिट कार्ड का पिन, उसका CVV, वो क्या होता है, डेटा. For example, what happens if you get password of mail, or if bank details or customer PIN number or credit debit card PIN number? What happens? Suppose मुझे मिल गया सचिन तेंदुलकर का फ़ोन नंबर. What I will do? I will sell the data ना. What I will do is, मैं क्या करूँगी, नंबर को बेच दूँगी. ठीक है, टू गेट द मनी. ठीक है, लाइकवाइज डेटा क्या करना है तुम लोग को, सेफ गार्ड करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द
POP approach. That's why we have to use the OOP in which डेटा क्या करता है, उसको सेफ गार्ड करता है, ठीक है. POP में क्या होता है, डेटा क्या होता है, पब्लिक होता है. फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज़ माई प्रोग्राम, ठीक है, और उसको एक ग्लोबल डेटा है, ठीक है. एंड दीज आर माई फंक्शंस, लाइक ये है फंक्शन 1, ये फंक्शन 2, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4, ठीक है. ये कितने लाइंस का है, 25,000 लाइंस का कोड है, ठीक है. तो हर एक फंक्शन में लाइक 8,000 लाइन का कोडिंग आएगा. सपोज इसमें 8,000 लाइन है, 8,000 लाइन है, 8,000 लाइन्स है, और इसमें क्या है, 1,000 लाइन्स है, ठीक है. नाउ मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए जो मुझे सारे फंक्शन में यूज़ करना है. फंक्शन 1 में करना है, फंक्शन 2 में करना है, फंक्शन 3 में भी करना है. तो मैं डेटा को क्या कर दूँगी, ग्लोबल, सो दैट ईच एंड एवरी फंक्शन कैन यूज़ दिस डेटा, ठीक है. नाउ ग्लोबल डेटा को फंक्शन 1 यूज़ कर रहा है, फंक्शन 2 भी यूज़ कर रहा है, फंक्शन 3 भी यूज़ कर रहा है, बट फंक्शन 4 को वो डेटा नहीं चाहिए, ठीक है. इसको क्या नहीं चाहिए, डेटा नहीं चाहिए. बट एक्सीडेंटली क्या कर रहा है, फंक्शन 4 ड्यू टू सम सिमिलर नेमिंग और समथिंग, ये क्या कर रहा है, वो डेटा को यूज़ कर रहा है, ग्लोबल डेटा को, और उसका वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. ना इसका वैल्यू सपोज है 4 और ये कर रहा है उसका वैल्यू 6, तो सबको कौन सा वैल्यू मिलेगा, 6. और तुम लोग का जो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा. मतलब क्या है, डेटा जो है सिक्योर नहीं है. POP में क्या नहीं है, डेटा क्या है, सिक्योर नहीं है ना. तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको ग्लोबल डेटा के बदले तुम लोग उसको क्या कर सकते हो, लोकल भी कर सकते हो. सपोज मैंने लोकल कर दिया फंक्शन 1 में, फंक्शन 2 में, फंक्शन 3 में, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हर एक फंक्शन में तुम लोग को सेम डेटा को डिक्लेयर करना पड़ेगा, विच विल मेक द वो क्या करेगा, मेमोरी ज़्यादा यूज़ करेगा. इसलिए तुम लोग क्या करते हो, उसको ग्लोबल करते हो. बट एक्सीडेंटली जिसको नहीं चाहिए फंक्शन को, उसने अगर उसको यूज़ किया तो क्या हो जाएगा, वो डेटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा और तुम लोग को जो आउटपुट है वो गलत मिलेगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, व्हाट इट मीन इज, तुम लोग क्या नहीं कर सकते, डेटा को पब्लिक नहीं कर सकते. अगर मैं बैंक में जा रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज़ द बैंक बैलेंस ऑफ मुकेश अंबानी, तो वो मुझे बैंक वाले बोलेंगे क्या, व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ मुकेश अंबानी. अगर मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज़ द बैंक बैलेंस ऑफ CM केयर्स फंड, नहीं बोलेंगे, सिंस बैंक बैलेंस क्या है, डेटा है, ठीक है. इट शुड बी प्राइवेट नॉट पब्लिक. अगर तुम लोग POP अप्रोच यूज़ करोगे तो सारा डेटा जो क्या हो जाएगा, पब्लिक, ठीक है. जो भी सॉफ्टवेयर्स है, बिग कंपनीज है, उनका डेटा जो क्या होता है, वो क्या होता है, प्राइवेट होता है, उसको वो पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है. इसके लिए तुम लोग कौन सा अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, POP अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते. सिंस POP में क्या होता है, जो डेटा होता है वो फंक्शंस के अराउंड फ्रीली मूव करता है. मतलब जो डेटा मेरा था, ग्लोबल डेटा, इसमें भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है. इट कैन मूव फ्रीली अराउंड द फंक्शंस, ठीक है, विच वी डोंट वांट, बिकॉज डेटा शुड बी प्राइवेट नॉट पब्लिक, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसमें जो है कि इट डज नॉट मॉडल द रियल वर्ल्ड, ठीक है. इट डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. व्हाट इट मीन्स, what is the meaning of this, it does not model the real world problem. suppose मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट आई नीड इज़, मुझे क्या चाहिए उसके लिए, एक मैनेजर चाहिए, ठीक है. मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉयज़, मुझे क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, ठीक है. लाइकवाइज मुझे क्या चाहिए, ये क्या है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स. मुझे क्या चाहिए, ये ऑब्जेक्ट्स चाहिए. बट POP में जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है,
फंक्शंस पे, उसका फोकस ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है। तो इसके सो दैट वी कैन नॉट मेक दिस मॉडल इन द पीओपी। ठीक है, लाइक अगर मुझे सपोज मुझे गर्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ना गिव मी एयर। व्हाट आई वुड से कि टर्न ऑन द फैन। मतलब हम लोग रियल वर्ल्ड में फंक्शनैलिटी में बात नहीं करते ना, हम लोग ऑब्जेक्ट्स में बात करते हैं। लाइक फैन का फंक्शनैलिटी क्या है, इट विल गिव यू एयर, ठीक है, बट आई वुड नॉट से ना कि गिव मी एयर। व्हाट आई वुड से इज turn on the fan, or I would say turn on the AC। सपोज तुम लोग को सपोज मुझे बाय करना है सम फ्रूट्स, लाइक आई वांट टू बाय सम ऑरेंजेस। अगर मैं फ्रूट सेलर के पास जाती हूँ, व्हाट आई वुड से इज आई वांट सम ऑरेंजेस। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ना गिव मी विटामिन सी, आई वांट सम विटामिन ए, आई वांट सम विटामिन सी। मैं ऐसे बात नहीं करूँगी ना, मैं क्या बोलूँगी आई वांट सम ऑरेंजेस, आई वांट सम एप्पल्स, मैं ऐसे बात करूँगी। ठीक है, तो पीओपी में क्या होता है, इसका मेन फोकस जो होता है वो किस पे होता है, फंक्शनैलिटी पे, नॉट ऑन डेटा और नॉट ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बट जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है उस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में फोकस करते हैं, डेटा पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अगर मेरे सॉफ्टवेयर में है अगर मेरे सिस्टम में चाहिए मुझे मैनेजर, तो मेरे प्रोग्राम में भी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए दैट इज़ मैनेजर। लाइक मुझे एक सिस्टम बनाना है बैंक, और मेरे बैंक में है एक मैनेजर, तो आई शुड हैव मैनेजर इन माई कोड। ठीक है, अगर मेरे बैंक में है कोई एम्प्लॉय, तो आई शुड हैव एम्प्लॉय इन माई कोड। अगर मेरे बैंक में है कोई कस्टमर, देन आई शुड हैव कस्टमर इन माई कोड। ठीक है, दैट इज called as object oriented programming, simulating real life object, these are real life object into your code। ठीक है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इनटू योर कोड इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अगर मुझे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो मेरे बैंक में होगा एक मैनेजर, मेरे बैंक में होगा एक एम्प्लॉय, मेरे बैंक में होंगे कस्टमर। ठीक है, अगर मुझे मैनेजर मेरे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में है, तो आई शुड हैव मैनेजर इन माई कोड, आई शुड हैव एम्प्लॉय इन माई कोड, एंड आई शुड हैव कस्टमर इन माई कोड। दिस इज द वे ऑफ कोडिंग, लाइक simulating real life, these are real life objects into your software code is known as object oriented programming. These are the basics of object oriented programming. I hope you understand. If you have any doubts, you can contact me. Thank you very much.